شب قدر کی رات یعنی لیلۃ القدر والی رات. یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات. ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر والی رات کو تلاش کرنا ہے. ان سبھی راتوں میں عبادت کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کسی بھی رات میں الگ الگ عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ 5 راتوں میں اسی طرح سے عبادت کریں جس طرح سے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جا رہی ہے. پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سبھی لوگوں کے لیے سیم طریقہ ہوتا ہے. آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے، بہت زیادہ فکر سے دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ بھائیوں اور بہنوں کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ اس پوری ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے. ایک بات بہت خلاصہ طور پر آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جا رہی ہے. کس طرح سے کون سی نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے نماز کو پڑھا جائے گا اور کس طرح سے اس رات میں عبادت کی جائے گی. تو چلیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ ہمیں اس رات میں کس طرح سے عبادت کرنی ہے. دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کی رات امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہم رات ہے. اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک اہم تحفہ ہے. اس رات کی ہم قدر کریں اور اس میں جتنا ہو سکے اتنی اللہ کی عبادت کریں. عبادت کرنے کا طریقہ اچھے سے جان لیجئے. اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی رات میں سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تراویح سے فارغ ہو جائیں. مرد حضرات بھی اور تمام خواتین بہنیں بھی عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھیں، جس طرح سے عام طور پر ہم رمضانوں میں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں. جب ہم تراویح سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے. نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. 2 رکعت کر کے ہم نفل نماز جتنی ہو سکے اتنی نماز پڑھیں. ان 2 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. جو چیز ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی سب کچھ ان 2 رکعت نفل میں بھی پڑھیں. آئیے جان لیتے ہیں کہ 2 رکعت نفل کو کیسے پڑھا جائے گا. سب سے پہلے آپ نیت کریں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. چاہیں تو دل میں ارادہ کر لیں اور اگر زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے کہہ لیں. نیت کرنے کا سمپل طریقہ ہے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کتنی رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں پوری رات میں، تو آپ ایک ہی بار اتنی رکعت کا نام لے کر نیت کر لیں. اگر آپ ہر بار 2 رکعت میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے ہی نیت کر سکتے ہیں. جیسا کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. یہ نیت کا طریقہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جب ہم نیت باندھ لیں گے، یعنی اپنی دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، تو اس کے بعد میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم. اس کو آخر تک پڑھیں گے. اس کے بعد میں تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھیں، ولضالین تک، اور پھر آمین کہہ دیں. اس کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت اس کے اندر ملا لیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو. اگر آپ کو 10 چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو ان میں سے کوئی سی سورت ملا لیں. جیسے کہ 10 چھوٹی صورتوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم پہلی رکعت میں الم ترا والی سورت پڑھ لیتے ہیں. الم ترا والی سورت کو مکمل کر کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم. اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. پہلا سجدہ ادا کریں اور سجدے میں 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد میں یہ پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہوئے. اب اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب دوسری رکعت میں جیسے کہ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا سے شروعات کی تھی، پھر تعوذ پڑھی تھی، اس میں ہم تسمیہ سے شروعات کریں گے. اس میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھنا، یعنی تسمیہ سے شروعات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروعات کر کے الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھیں گے اور آخر تک پڑھ کر آمین بھی کہہ دیں گے. اس کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں. اگر آپ 10 چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم ترا والی سورت پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لی الافی قریش والی سورت پڑھ لیں. اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع میں جائیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم
3, 5 या 7 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे में जाएं। सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें। सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर अब हमें दूसरी रकात में बैठ जाना है। जब हम दूसरी रकात में बैठ गए, क्योंकि हमने 2 रकात नमाज की ही नियत की थी, तो इस 2 रकात नमाज की नियत में जब हम बैठेंगे तो दूसरी रकात में यानी तशहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो ये तो हो गया 2 रकात नमाज का तरीका। अब इसी तरह से 2-2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ सकते हैं इस पूरी रात में आप पढ़ लीजिए। अगर आपको अभी भी नफिल नमाज पढ़ने का तरीका समझ नहीं आया है तो इस वीडियो के आखिर में आपको स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो जाएगी जिसमें 2 रकात नफिल पढ़ने का तरीका बताया गया है। आप उस वीडियो को पूरे तरीके से देखकर अच्छे से नमाज को पढ़ना सीख जाएंगे। अब बात आ जाती है कि नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें वगैरह अगर आपको याद नहीं है तो वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम सूरतें और तस्बीहात मिल जाएंगी जो कि नमाज के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो चलिए ये तो हो गया 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का तरीका। इसके अलावा हम कुरान शरीफ पढ़ें। अगर हम कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो हम आधा पारा, 1 पारा, 2 पारे जितने भी हमसे मुमकिन हो उतने कुरान शरीफ को पढ़ लें हम, क्योंकि कुरान शरीफ को रमजान से एक बहुत खास निस्बत है। रमजान की शब कदर की रात में कुरान करीम नाजिल हुआ है, तो शब कदर की रात में हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो सके उतना कुरान करीम को पढ़ें। अगर आप कुरान करीम पढ़े हुए नहीं हैं तो फिर आप बिस्मिल्लाह का कुरान करीम पढ़ सकते हैं। वुजू तो आपका होगा ही, अगर वुजू नहीं है तो पहले वुजू कर लें। उसके बाद में कुरान करीम को खोलिए और हर लाइन पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते चले जाइए। इस तरह से आप शबे कदर की रात में बिस्मिल्लाह वाला कुरान करीम पढ़ सकते हैं। इससे आपको कुरान करीम पढ़ने का सवाब तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता आपको कुरान करीम को देखने का और उसको छूने का और उसकी हर लाइन पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान करीम की ही एक आयत है, तो उसका सवाब भी बेपनाह है। 1 मरतबा अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो 10 गुना से लेके 700 गुना तक पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। तो इस तरह से आप बिस्मिल्लाह वाला कुरान करीम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हम अपनी इस कमी को पूरा करें और अभी से रमजान ही से कुरान करीम को इस लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि मुझे बहुत जल्द कुरान करीम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है। ये नियत आप अभी से कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुरान करीम को पढ़ना सीख जाएंगे। फिर आपको कुरान करीम की तिलावत की फजीलत भी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए। दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत हदीस में बयान की गई है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर 10 मरतबा रहमतें भेजता है जो अल्लाह के नबी पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है। अल्लाह ताला 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की 100 मुसीबतें दूर करता है, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। तो दुरूद शरीफ भी इस रात में खूब ज्यादा पढ़ें। इसके अलावा इस्तिगफार की भी तस्बीह हमें खूब पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक इससे हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक बंदे की हर दुआ को जरूर कबूल करते हैं। ये नमाज अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होती है। अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका आपको नहीं आता है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरी वीडियो को देखकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका भी जान जाएंगे। इस रात में आप सदका भी जरूर कीजिए। कुछ पैसों को इस रात में इस नियत से अलग कर दीजिए कि उनको मुझे सदका करना है। आपको नियत करते ही सदके का सवाब मिल जाएगा। फिर जब सुबह हो तो अगले दिन आप उन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए, जरूरतमंदों को तकसीम कर दीजिए। इस रात में अपनी छुटी हुई नमाजों की भी आप कज़ा कर सकते हैं। मकसद यह है कि इस रात में आप खूब इबादत कीजिए, क्योंकि इस रात की फजीलत हदीस और कुरान में बहुत ज्यादा आई है। अल्लाह ताला फरमाता है
कुरान में शब कदर की रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। जो शख्स शब कदर की रात में इबादत करता है उसे 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। आप जरा सोचिए कि सिर्फ एक रात के चंद घंटे, 3-4 घंटे या 5 घंटे अगर हमने उनको इबादत में लगा दिया तो उसका कितना बड़ा सवाब है। 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब है। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रमजान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई कि जो इस रात में महरूम रह गया, यानी इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी उसे कोई खैर और भलाई नहीं मिली। फिर आगे आका ने फरमाया कि इस रात से वही आदमी महरूम रहता है जो कि हकीकत में महरूम हो, यानी इस रात को पाने की कोशिश ही ना करे, वही इस अफजल रात से महरूम रहता है। अल्लाह के नबी इस रात की फजीलत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद रखते हुए शबे कद्र की इबादत करने के लिए खड़ा हो, उसके अगले पिछले जितने भी गुनाह हैं उन सबको अल्लाह पाक माफ कर देगा। शबे कद्र हमारे लिए बहुत ही खास रात है। इस रात में अल्लाह ताला लोगों की मगफिरत के फैसले फरमाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस रात से महरूम रह गया तो वो दुनिया की तमाम भलाइयों से महरूम रह जाता है। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये पूरा मसला आ गया होगा। देखिए 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातें हैं और इन 5 रातों में हमें इबादत करना बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल ना समझें कि 21 तारीख को ही लैलतुल कद्र है या शबे कद्र है, या 23 तारीख में या 25 तारीख में या फिर 27 या 29 तारीख में। देखिए हमें इन 5 रातों में इबादत का एहतमाम करना है। इबादत का तरीका हम आपको बता चुके हैं, इसी तरीके से आपको इबादत करनी है। इन 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को आप अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, अपने सभी भाइयों और सभी बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।